Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I will solve some questions from the topic atomic structure, which is the topic of discussion in today's video. So let's begin solving the questions. And if you're new to my channel, please take a moment to like, share and subscribe. Smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial, you get notified. First question is maximum number of electron in subshell of an atom is governed by option A 4l plus 2, option B 2l plus 1, option C 4l minus 2 and option D 2n square. So basically talking about the maximum number of electron which can be accommodated in any subshell, it is basically governed by 4l plus 2, which is A option. That is for first question, it is 4l plus 2. Remember this. Question number 2, the orientation of an atomic orbital is governed by option A azimuthal quantum number, option B spin quantum number, option C magnetic quantum number and option D principal quantum number. So basically magnetic quantum number is the quantum number which basically focuses on the orientation of atomic orbital. So that means option C will be correct. Magnetic quantum number, just magnetic quantum number. Okay. Third question. Two electrons occupying the same orbital are distinguished by option A magnetic quantum number, option B azimuthal quantum number, option C spin quantum number and option D principal quantum number. Okay, so सबसे पहले इस ये third question में let's first try to write what it is actually asking you in the question. So it is basically telling you if two electrons occupy the same orbital, which of the quantum number basically helps it to distinguish. So this is question number third. If there are two electrons present in an orbital, obviously one will be spin up and another will be spin down. That means it will be basically distinguished by spin quantum number. Spin quantum number, which mainly focuses on the spin of electrons. That means option C, which is a spin quantum number, is the correct option. Okay. Next question. Question number 4 is which one is wrong statement? De Broglie's wavelength is given by lambda is equal to h by mv, where m is equals to mass of particle and v is group velocity of particle. तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस देखूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी और बेसिकली it is also written as h by mv. This is basically p is also written as the product of mass into velocity. तो ये बेसिकली सही है. m is mass of particle, v is group velocity. This is correct statement. सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम. बेसिकली ये चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देन यू हैव टू टेल विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई. तो जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आई जस्ट revise it once, that it is not possible to basically calculate the position and velocity of the particle at the same time. It is represented as delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 पाई. ठीक है, ये टर्म बेसिकली डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी दिया है. इसके हम बेसिकली अरेंज करके देखते हैं इफ़ वी कैन रीच टू दिस इक्वेशन. सो मैं कैसे लिख सकती हूँ डेल्टा पी को डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी greater than equal to h by 4 pi. ठीक है. Now we know acceleration is equals to velocity by time. So velocity will be acceleration into time. ठीक है. यहाँ पे डेल्टा v है, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा a इंटू डेल्टा t इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू h by 4 पाई. कुछ नहीं किया है मैंने. बेसिकली वी नो एक्सेलरेशन इज़ वेलोसिटी बाय टाइम. तो ये बेसिकली डेल्टा वी की वैल्यू की अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ चला जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा वी एट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी. तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है. नाउ अब क्या करना है हमें कि वी नो फोर्स, ये जो वैल्यू है इसे मैं और सिंप्लीफाई वे में कैसे लिख सकती हूँ. पहले तो मैं ये लिख दूँ, mass into acceleration is force h by 4 pi. ठीक है. नाउ ये बेसिकली अगर मैं इसे लिखूँ
दिस पार्ट कैन बी रिटन एज डेल्टा ई, और ये डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई. Since डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो वो मैंने वैल्यू पुट किया, तो ये इस फॉर्म में आ गया. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई. तो ये फॉर्म है बेसिकली करेक्ट. दिस इज नॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट अब देख लेते हैं. हाफ filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. ये बिल्कुल सही है. It is also mentioned nicely in NCERT if you go through that. Half filled and fully filled orbitals have greater symmetry, balanced arrangement, that's why they are more stable. Now एक ही option बचा, obviously that will be the wrong statement, but we have to basically know the reason behind it. The energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital in case of hydrogen like atoms. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम्स विच इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, द वैल्यू बेसिकली द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल विल बी सेम. तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बेसिकली इट इज़ वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज. इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैल्यू ऑफ 2s एंड 2p विल बी इक्वल. दैट मीन्स फॉर फोर्थ क्वेश्चन डी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Fifth, the angular momentum of electron in d orbital is equal to. तो यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है फॉर डी ऑर्बिटल. सो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम रूट एल इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई. ठीक है, ना यहाँ पे हमें एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. डी ऑर्बिटल है, ठीक है, एस पी डी एफ 0 1 2 3. ठीक है, ये एल की वैल्यू लिखी है मैंने. ठीक है, तो यहाँ पे डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2. ये पुट कर दो 2 + 1 h/2 पाई. ठीक है, 2 + 1 3 h/2 पाई रूट 6 h/2 पाई. ठीक है, मैं इसे रूट 6 को, और ये आप देखोगे अब क्वेश्चन में बेसिकली रूट 6 के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसे और कैसे लिख सकती हूँ. ओके, so there is this correction in the question. I think here if I have got the value root 6 h/2 पाई, obviously अगर मैं h क्रॉस के टर्म्स में लिखूँगी तो ये होगा रूट 6 h क्रॉस. ठीक है, तो ये क्योंकि हमें पता है h क्रॉस इज h/2 पाई. सो ऑब्वियसली इन द ऑप्शन हियर दिस शुडंट बी h, आई थिंक इट विल बी h क्रॉस. आई जस्ट क्रॉस चेक दिस वंस एंड मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस करेक्शन. तो ये बेसिकली रूट 6 h क्रॉस होगा अगर ऑप्शन में h क्रॉस है. सो आई जस्ट रीचेक दिस क्वेश्चन वंस, बट दिस विल बी सॉल्व इन दिस वे ओनली, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी ना. रूट 6 h/2 पाई आ रहा था. अभी नो h/2 पाई को हम h क्रॉस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बिकॉज h क्रॉस इज इक्वल्स टू h/2 पाई. ठीक है, सो दिस दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी कंसिडर दिस h एज h क्रॉस, दिस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. बट आई विल क्रॉस चेक वंस एंड मे बी आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग. ओके, next question, the energies of E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths, that is delta 1 and lambda 1 and lambda 2 will be. This is the sixth question. तो यहाँ पे there are two energies, जो है एक पहला तो E1 है जिसकी वैल्यू है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 है उसकी वैल्यू है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आपको कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू h न्यू होता है. ठीक है, एंड E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. दिस इज द टू एनर्जीज गिवन ओवर हियर. वी कैन राइट इट एज hc बाय लैम्डा 1, क्योंकि ऑब्वियसली h और c की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी.
E2 कैसे लिख सकते हैं हम, HC बाय लैम्डा 2। अब हमें बेसिकली रिलेशन कैलकुलेट करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में। अगर मैं E1 बाय E2 करूँ तो क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाय HC। ऑब्वियसली ये दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, HC कैंसिल हो जाए। E1 और E2 की वैल्यू दी हुई है 25 है E1 के लिए और E2 की है 50, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये 25 वन ज़ा 2 ज़ा, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो आई राइट इट हियर, देयरफॉर लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा 1 और लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लैम्डा 2 जो कि ऑप्शन में। तो बेसिकली ऑप्शंस के हिसाब से यू हैव टू जस्ट रीअरेंज इट अ बिट। ये आ रहा था लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा 1, ये ऑप्शन इस वे में दिया हुआ है, lambda 1 is equals to half of lambda 2, that means C is the correct option for sixth question. Okay, next question. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. H की वैल्यू विच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी हुई है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, E इज इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला मैं पुट करूँगी, E इज इक्वल टू एच न्यू HC बाय लैम्डा, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दी हुई है, हाँ यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू 45 नैनोमीटर है, तो उसे हमें मीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, रिमेंबर दिस। तो ये हो जाएगा 45 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। नाउ अब एनर्जी कैलकुलेट करनी, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये इसकी वैल्यू है 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब ये बेसिकली कैलकुलेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में यू हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, यू नीड टू बी रियली पेशेंट, डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज। जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है रिवाइज दैट and make sure you solve n number of questions so that you can solve it in a short span of time in the examination hour. Okay, तो ये 6.63 इंटू 3 बाय 45 माइनस 34 एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर m प्लस n प्लस 8, ठीक है। अब ये पार्ट में इरेज कर देती हूँ, ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 1 19, ये 19.89 इंटू 34 माइनस 8 26 10 टू द पावर माइनस 26, और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस 9 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। क्या आएगा ये 19.89 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 26 माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 17, ठीक है। अब ये वैल्यू एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल कैलकुलेट एंड लेट यू नो। 19.89 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइडेड बाय 45, 0.442, 0.442 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 0.442 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों ऑप्शंस तो पहले से कैंसिल आउट हो जाएंगे, या तो 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 होगा, या 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 होगा। नाउ अगर मैं इसे 442 बाय ऐसे लिख सकती हूँ, नाउ इफ़ आई राइट इट एज 442 बाय 100
इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बेसिकली रीअरेंज किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। अब क्या होगा, क्योंकि हमें बेसिकली ऑप्शंस देख के और मतलब ऑप्शंस जो दिए हैं उसके हिसाब से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 100 है तो ये क्या आ जाएगा 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और यहाँ पे एक 10 है तो ये -1, तो ये आ जाएगा 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यू नीड टू रीअरेंज। ओके, last question. The measurement of electron position is associated with an uncertainty in momentum which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 gram centimeter per second. The uncertainty in electron velocity is mass of electron is 9 into 10 to the power minus 28 gram. ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। बेसिकली अगर न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले तो ये देख लो कि आपको क्या क्या ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब कि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी, वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डेल्टा पी की वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर माइनस 18। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। ये डेल्टा वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये मैं एक्स ले लेती हूँ, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 18 बाय 10 टू द पावर माइनस 28 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 28, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। तो 1/9 आई थिंक 0.1 के अराउंड आएगा, हाँ 1/9 विल बी अराउंड आई थिंक 0.1 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये 1/10 लिख सकती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 10 माइनस 1 10 टू द पावर 9। दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इंटू 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ए। Okay, so this was the last question which I've solved, and that was all about this video. I hope this video is providing some sort of help to the students who are preparing for the competitive exam. And if you like this video, please give it a big fat thumbs up and show some love and support. And I make sure that I upload chemistry tutorials every week. And please do like, share and subscribe if you have watched my videos before and if you like my content. And thank you for watching.